students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are here with our first chapter of class first, which is about different types of computers. Okay, so today we have to discuss the various categories of computer we are having in our life and we use it for different purposes. Okay, chalo. So let's start our chapter. See, computers are one of the most incredible inventions that mankind has ever developed. We can store and process huge amounts of information using computers, allowing our human brains to rest for a bit. So computers क्या है, एक सबसे ज़्यादा incredible invention है जो mankind यानी कि human beings ने आज तक develop किया है. हम क्या करते हैं, बहुत सारी information को, बहुत सारा data को easily क्या कर सकते हैं, store कर सकते हैं in our computer system. So that जो ह्यूमन ब्रेन है दे कैन रेस्ट फॉर अ बिट, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन्स में क्या था, इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती थी. ओके, वी हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हेन वी यूज टू use our brain for any kind of storing information. But as we have discovered what computers in our life, then we don't need to store any more information, as we can store huge amount of information and data in our computer system nowadays. And now we come to the topic, which is types of computers. So computers are categorized based on their internal constructions as well as their features and usefulness. So computers को जो categorize किया जाता है वो किस basis पे, उनके internal construction के basis पे या फिर उनके features या usefulness के basis पे हम उनको different categories में classify कर सकते हैं. So basically how many types? There are 5 types of computers. Number 1 is supercomputer, second is mainframe computer, third is mini computer, fourth is workstation, and the fifth is PC, which is known as personal computer. And now we have to discuss about all these types of computers in a detailed manner. So the first is what? Supercomputer. सबसे पहले supercomputer के बारे में पढ़ेंगे. They are the fastest and most expensive computer. सबसे ज़्यादा fastest और सबसे expensive computers हैं supercomputers. They can perform up to 10 trillion calculations per second. एक second में around 10 trillion तक calculations ये perform कर सकते हैं. इनकी जो कैपेसिटी है दैट इज बेस्ट मेमोरी कैपेसिटी अमंग ऑल कंप्यूटर्स. सभी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बेस्ट जो मेमोरी कैपेसिटी है दैट इज ऑफ सुपर कंप्यूटर. ओके, नाउ for what purpose they are used? They are used for weather forecast, space programs, etc. Where trillions of data are calculated as stored. Weather forecasting के लिए, space programming के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डेटा को कैलकुलेट एंड स्टोर करना होता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी काफ़ी लार्ज होती है एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से ये काम करते हैं. दे आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इनका यूज़ करती हैं फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस एंड ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग. जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं और ऐसा डेटा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं. मोस्टली कहाँ? गवर्नमेंट एंड जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं वो इन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. इनको क्लाइमेट कंट्रोल रूम में रखा जाता है एंड इनमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर. ओके, चलो. नाउ next type of computer which we have to discuss is mini computer. Okay, so mini computer, they are light in weight and easy to transport and store. काफ़ी हल्के होते हैं वेट में, so easily हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. इनकी जो कॉस्ट होती है इट इज़ लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपेरिजन में कम एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं फॉर इट्स साइज एंड इट रिटेन्स इट्स चार्ज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. इनमें जो चार्ज होता है वो क्या अपने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक भी रह सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट? वर्क स्टेशंस. सो वर्क स्टेशंस किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक पर्पसेस. टेक्निकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए हम किनका वर्क स्टेशंस का यूज़ करते हैं. ये काफ़ी कॉस्टली है एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर हाई लेवल टास्क. कॉस्टली होते हैं और कुछ हाई लेवल टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिकली इनको बनाया जाता है, डिज़ाइन किया गया है. इनको यूज़ करते हैं हम एनिमेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए एंड ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू पीसी विच इज पर्सनल कंप्यूटर्स. एज अ नेम सजेस्ट कि ये आपके जो
इंडिविजुअल लेवल या पर्सनल लेवल के कंप्यूटर्स होंगे उनको आप पीसी कहते हो। इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स एंड इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर मेंट फॉर पर्सनल यूसेज। एक जनरल पर्पस का कंप्यूटर है जिसको पर्सनल यूसेज के लिए यूज किया जाता है। ये किससे मिलकर बनता है? CPU विच इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस एक मेमोरी डिवाइस, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पीसी। ओके, चलो। नाउ फॉर व्हाट पर्पस दे आर बीइंग यूज्ड इज दे आर यूज्ड फॉर पर्सनल टास्क। पर्सनल टास्क के लिए यूज होते हैं जैसे कि टाइपिंग, वॉचिंग अ मूवी, डूइंग ऑफिस वर्क एक्सेट्रा। लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप्स आप कॉमनली यूज करते होंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये सब किसके टाइप्स हैं? आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं। और वी कैन से दे आर द एग्जांपल्स ऑफ पीसी। नाउ next we have discussed all the types of computer and now we come to the topic which is functions of a computer. ठीक है, so as we all know there are many functions of a computer but in this chapter we have to discuss some core functions of a computer, such as a computer accepts the command and data as the input given by the user. कंप्यूटर का काम क्या है? किसी भी कमांड या डेटा को क्या करना? एक्सेप्ट करना। ठीक है, और वो डेटा या कमांड यूजर के थ्रू कंप्यूटर को दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। नाउ कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उस डेटा को स्टोर करता है विच इज गिवन बाय द यूजर। देन कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर ने कंप्यूटर सिस्टम को दिए होते हैं। एंड एट द लास्ट कंप्यूटर गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। जब उस डेटा पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर कंप्यूटर क्या देता है? ये रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ओके, नाउ next we come to the topic which is characteristics of a computer. What are the features, what are the characteristics of a computer that we have to discuss now. So there are some important characteristics of a computer. Number one is speed. ओके, कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये बहुत फास्टली एंड रैपिडली वर्क करते हैं किसी भी टास्क के ऊपर। सो इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। स्टोरेज, नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज क्या कि कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन वेरियस फॉर्मेट। कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। थर्ड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स टू द पॉइंट। जो इसके प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट जो हमें कंप्यूटर सिस्टम देता है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट इज वर्सटैलिटी। सो कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। कंप्यूटर एक काफ़ी वर्सेटाइल डिवाइस है एज इट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज और वेराइटी ऑफ टास्क। ओके, next is diligence. Okay, so computer never gets tired nor loses concentration. computer कभी भी थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता है, ना ही अपना concentration lose करता है। next is reliability. as a computer always give accurate result, therefore it is its reliability is very high. क्योंकि computer accurate result देता है तो इस पे जो reliable चीज़ें हैं हम लोग इस पे easily rely कर सकते हैं बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, इसीलिए इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी हाई मानी जाती है। एंड द लास्ट फीचर इज वास्ट मेमोरी। कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो काफ़ी वाइड रेंज की मेमोरी है एंड दैट कैन रिकॉर्ड द डिजायर्ड डेटा एट एनी पॉइंट इन टाइम। सो दैट इसकी जो मेमोरी है काफ़ी सुपरसाइज होती है जिसकी वजह से ये आपको डिज़ायर्ड डेटा रिकॉल करके किसी भी टाइम पे आपको इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट इट कैन गिव यू। ओके, चलो। सो now we have discussed many facts regarding computer over here and the chapter is completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.